ભરૂચમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધન ફક્ત નામનું, કોંગ્રેસના કાર્યકરો નિષ્ક્રિય બન્યા. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સિવાય આપના ઉમેદવારોને સમર્થન નહીં આપીએ તેવું કેટલાક કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું. ચૈતર વસાવા કોંગ્રેસમાંથી લડે તો કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ રાજી. અહેમદ પટેલના ગઢ ગણાતા ભરૂચમાં કોંગ્રેસને ટિકિટ ના ફાળવતા કોંગ્રેસીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. તો આપના ઉમેદવારને સમર્થન નહીં આપે તેવું કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓનું કહેવું છે. તો કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ નિષ્ક્રિય બન્યા છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સિવાય આપના ઉમેદવારોને સમર્થન નહીં આપીએ તેવું કેટલાક કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું. ચૈતર વસાવા કોંગ્રેસમાંથી લડે તો કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ રાજી. અહેમદ પટેલના ગઢ ગણાતા ભરૂચમાં કોંગ્રેસને ટિકિટ ના ફાળવાતા કોંગ્રેસીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. તો ભરૂચમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધન ફક્ત ઔપચારિક હોવાનું સામે આવ્યું છે. બેઠક આપને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ નિષ્ક્રિય બન્યા છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સિવાય આપના ઉમેદવારને સમર્થન નહીં આપીએ તેવું કેટલાક કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓએ જણાવ્યું છે. ચૈતર વસાવા કોંગ્રેસમાંથી લડે તો કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ રાજી છે. અહેમદ પટેલના ગઢ ગણાતા ભરૂચમાં કોંગ્રેસને ટિકિટ ન ફળવાતા કોંગ્રેસીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના કાર્યકરો ભરૂચમાં નિષ્ક્રિય બન્યા છે. તો જે રીતે સમાચાર સામે આવ્યા છે, ભરૂચમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધન ફક્ત ઔપચારિક હોવાનું સામે આવ્યું છે. કોંગ્રેસના કાર્યકરો નિષ્ક્રિય બન્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સિવાય આપના ઉમેદવારને સમર્થન નહીં આપે તેવું કેટલાક કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓએ જણાવ્યું છે. વધુ વિગત સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા વસીમ મલિક. જી વસીમ, શું છે વધુ વિગતો? બિલકુલ, જે પ્રમાણે ઇન્ડિયા ગઠબંધન દ્વારા ગુજરાતની 2 સીટો ફાળવવામાં આવી, ભાવનગર અને ભરૂચ. પરંતુ ભરૂચમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને હજી પણ ઇન્ડિયા ગઠબંધન રાજી કરવામાં નિષ્ફળ છે એવું ચોક્કસપણે કહી શકાય. 2 દિવસ પહેલા જ કોંગ્રેસના તમામ ઘણા બધા કાર્યકર્તાઓ ભેગા થઈને સર્કિટ હાઉસ ખાતે આ બાબતની મિટિંગ કરી હતી. એમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે અમે ઉચ્ચ કક્ષાએ આ બાબતની રજૂઆત કરીશું અને રજૂઆત કરીને આ ટિકિટ કોંગ્રેસનું ગઢ ગણાતા, અહેમદ પટેલનો ગઢ ગણાતા ભરૂચને કોંગ્રેસના સિમ્બોલ વગર 1951 પછી પહેલી વાર આ ઘટના બની રહી છે કે જ્યારે કોંગ્રેસ એના સિમ્બોલ વગર આ ચૂંટણીમાં ઝંપલાવી હોય, અને તે પણ અહેમદ પટેલનું શહેર. એટલા માટે કેટલા બધા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ છે, ઘણા ખરા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ જે છે એ આ વાતને એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા અને આ સમર્થન જે આપના કેન્ડિડેટને છે એ કેમ કરીને આપવું એ બાબતે, અને સાથે સાથે કોંગ્રેસના જે કાર્યકર્તાઓ છે જે અસમંજસમાં મુકાયા છે કે આમ આદમી પાર્ટીને કઈ રીતે સમર્થન આપી શકાય. એટલે ટૂંકમાં એવું કહી શકાય કે આપ ઇન્ડિયા એલાયન્સ તો થઈ ગયું, પરંતુ ગુજરાત કોંગ્રેસની મોવડી મંડળ જે છે એ અત્યાર સુધી આ ઇન્ડિયા ગઠબંધનને ભરૂચમાં સાર્થક થતું હોય એવું કોઈ પણ હદે દેખાતું નથી. કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને મનાવવામાં કોંગ્રેસની જે મોવડી મંડળ છે એ પણ અત્યાર સુધી સફળ નથી એવું સ્પષ્ટપણે કહી શકાય. કારણ કે ચૈતર વસાવા જ્યાં પણ રેલી કરી રહ્યા છે ત્યાં કોઈ પણ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ હજી પણ દેખાઈ નથી રહ્યા. એટલે ક્યાં પણ નથી દેખાતું કે આ ઇન્ડિયા ગઠબંધન જે છે એ આ ગઠબંધન સાથે મળીને કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી લડી રહી હોય, પરંતુ માત્ર ને માત્ર આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ ચૈતર વસાવાની રેલીઓમાં દેખાઈ રહ્યા છે હાલ. એટલે ચોક્કસપણે કહી શકાય કે ફક્ત આ જે ગઠબંધન છે ભરૂચમાં ફક્ત નામ પૂરતું છે એવું ચોક્કસપણે કહી શકાશે. જી, સમગ્ર જાણકારી સાથે જોડાવા બદલ આભાર. તો સંદેશ ન્યૂઝે આજ અંગે અહેમદ પટેલના દીકરી મુમતાઝ પટેલ સાથે ખાસ વાત કરી, એક્સક્લુઝિવ વાત કરી. તો સંદેશ ન્યૂઝ સાથે મુમતાઝ પટેલની શું વાત થઈ તે જોઈએ. તો મુમતાઝ પટેલના કોંગ્રેસ અને આપ પર આડ કરતા પ્રહાર. મુમતાઝ પટેલની સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત થઈ. તો ભરૂચમાં ભાડુઆતે ઘર કબજે કરી લીધું છે તેવી વાત મુમતાઝ પટેલ દ્વારા સામે આવી છે. સંદેશ ન્યૂઝ સાથે મુમતાઝ પટેલે ખાસ વાતચીત કરી હતી. તો ભાડુઆતે ઘર કબજે કરી લીધું છે તેવી વાત સામે આવી હતી. ભરૂચ બેઠક પરથી આપ પાર્ટીનું જીતવું મુશ્કેલ છે તેવી વાત સંદેશ ન્યૂઝ સાથે મુમતાઝ પટેલે કરી હતી. કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ બેઘર થયા છે. તો સંદેશ ન્યૂઝ દ્વારા મુમતાઝ પટેલ સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. તો નારાજ કાર્યકરોને મનાવવાનું હવે ચૈતર વસાવાનું કામ છે તેવી વાત મુમતાઝ પટેલ દ્વારા સામે આવી હતી. મુમતાઝ પટેલના કોંગ્રેસ અને આપ પર આડકતરા પ્રહાર સામે આવ્યા છે. ભરૂચમાં ભાડુઆતે ઘર કબજે કરી લીધું હોવાની વાત મુમતાઝ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. लोकसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो चुका है, लेकिन इस समझौते में गुजरात की भरूच लोकसभा सीट ऐसी है
जो समझौते से पहले भी और समझौते के बाद भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। यह सीट अब आम आदमी पार्टी को जा चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुमताज़ पटेल, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की बेटी है। मैम, जिस दिन ये समझौता हो रहा था, समझौते का ऐलान हो रहा था, उस दिन हम लोगों ने देखा कि अंतिम समय तक आप इस उम्मीद में थी कि शायद ये सीट कांग्रेस को मिले और लगातार आप इसको लेकर के ट्वीट भी कर रहे थे। हम लोग उस ट्वीट को फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन ये सीट तो अब चली गई आम आदमी पार्टी को। ज़्यादा दुख हुआ या ज़्यादा निराशा हुई? दुख भी, निराशा भी, सच बोलूँगी। और आखिरी तक ये नेगोशिएशन इसलिए चला क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस सीट को देने के लिए तैयार नहीं थी, पर अलायंस की बात आगे बढ़ ही नहीं रही थी जब तक भरूच पे बातचीत नहीं करी जाए। तो जब हमने समझा कि इसके तहत हम कांग्रेस पार्टी के खाते में 10-12 सीट और बचा सकते हैं, तो एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में फिर इस बात को जाने दिया, बड़े ही दुख और निराशा के साथ। ये लार्जर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि एक आम आदमी पार्टी सचमुच गुजरात में इतनी भारी हो गई कि कांग्रेस छोटी हो गई, या कांग्रेस अब इतनी छोटी हो चुकी है कि किसी से भी समझौता करने को तैयार है और कोई भी परंपरागत जो सीट है वो देने को तैयार हो गई आम आदमी पार्टी को? ऐसा नहीं है। एक कोएलिशन पॉलिटिक्स में काफ़ी बारीकियां होती हैं, काफ़ी दावपेच होते हैं, काफ़ी नेगोशिएशन होते हैं। मेरे पिता करते आ रहे थे। पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। हो सकता है कोई ना कोई कंपल्शन रही होगी, पर जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था कि कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग हैं आम आदमी पार्टी के, तो मैं फिर से यही कहती हूँ कि कैंडिडेट आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो आपको अलायंस की ज़रूरत ही नहीं है। अलायंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है और ऐसी जगहों पे पड़ती है जहाँ पे एक पार्टी भारी है और दूसरी नहीं, तो आप मिल के इलेक्शन लड़ते हैं तीसरी पार्टी को हराने के लिए। तो यहाँ तो कांग्रेस का चाहे हारती भी आ रही थी, बट कांग्रेस के हमारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं। और मैं आज पूछना चाहूँगी कि अगर एक तरीके से होता है कि किराएदार घर में घुस गए, तो जो मकान मालिक हैं, मैं उस तरीके से कहूँगी, 20-25 साल से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, ज़मीन पे काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनका क्या? आज एक तरीके से वो बेघर हो गए और जाहिर है नाराज़गी है। देखिए, संदीप पाठक जी तो बोल के चले गए कि मुमताज़ का क्या यहाँ पे, वो ना यहाँ रहती हैं, वो दिल्ली की है। मैं आज दिल्ली में बैठ के आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ, पर भरूच की बेटी का खिताब मिला था। अहमद पटेल जी की बेटी हूँ, वोटर वहीं की हूँ, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी की, पैदा वहाँ हुई हूँ, घर बार है, परिवार है। पर मुझे भी आप साइड में कर दीजिए। जो ज़मीन पे 25 साल 30 साल से काम करते आ रहे, हारने के बावजूद जो सह रहे हैं इस शासन का दबाव, ज़ोर, जो खा रहे हैं लाठियाँ, तो उन बेचारों का क्या? तो आज मैं एक बड़ी मुश्किल स्थिति में आ गई कि एक तरफ काडर नाराज़ है और मुझे उनके साथ खड़े रहना है, दूसरी तरफ मेरी पार्टी है जिनकी तरफ से मुझे अलायंस धर्मा को निभाना है। अभी जब मुझे कॉल आते हैं तो मैं क्या बोलूँ उनको? मैं बोलूँ अगर कि नहीं जी हो गया, मैंने तो, क्योंकि मुझे बोला उन्होंने, आपने तो मीडिया में स्टेटमेंट दे दिया कि आप पार्टी के निर्णय से समर्थन करती हैं और आप पार्टी लाइन को टो करेंगी, हमारा क्या? तो जो काडर नाराज़ है और इस काडर की आम आदमी पार्टी को अब ज़रूरत है ज़मीन पे चुनाव लड़ने के लिए, तो अब ये जिम्मेदारी बनती है चेतर भाई की कि वो काडर को मनाएं, क्योंकि काडर के साथ तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये हमारा काडर है, हमारा परिवार है, पर इलेक्शन आपने लड़ना है, इलेक्शन आपको जीतना है, तो अब आपके हवाले आपको मनाना पड़ेगा। तो चेतर भाई के बस में है या आपके बस में है? देखिए, मैं मेरे परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। बहुत ही इसको ट्रिवियलाइज़ कर दिया गया था एक तरीके से कि सिर्फ एक टिकट की बात है, सिर्फ एक चुनाव की बात है। नहीं, टिकट और चुनाव की बात नहीं है। ये एक कांग्रेस पार्टी का भरूच में अस्तित्व का सवाल था। कांग्रेस पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, कांग्रेस पार्टी आगे के चुनाव कैसे लड़ेगी, तो ये सब जो चीज़ें थी इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमारी पार्टी यहाँ पे दो पार्टी के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पार्टी थी, तो हमारा यही आर्ग्यूमेंट था कि अलायंस में ये सीट, अलायंस बेशक हो, अलायंस से कोई आपत्ति नहीं है, बट अलायंस में ये सीट कांग्रेस पार्टी की बनती है। मुमताज़ पटेल क्या आकलन करती हैं कि चेतर बसावा जीते या हारे, वो एक बात का इशू है, उसके बाद क्या होगा?
मतलब कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे क्या असर पड़ेगा? जी, क्योंकि अभी इस वक्त आप देखें तो पूरे भरूच में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस खो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आप कैंपेन करने जाएंगे? देखिए, पार्टी के लिए जो करना पड़ेगा, मैं हमेशा कहती हूँ मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगी। लेकिन अगर पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि आप आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में कैंपेन करिए, तो आप जाएंगे? देखिए, आपके कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? आपको लगातार फोन मैं देख रहा हूं कि आ रहे हैं। जी, कार्यकर्ता तो मना ही कर रहे हैं, और एक तरीके से अगर आप देखिए तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमने अपनी सीट का बलिदान दे दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो हमारी तरफ से हमने जो करना था कर दिया। पर अब मैंने जैसे कहा, अब चेतर भाई के हवाले कि वो कितना मना पाए। तो क्या आपको लगता है कि फिर कभी मुमताज पटेल इस सीट को रिकवर कर पाएंगे? बिल्कुल, ग्राउंड पे काम करेंगे, पूरी मेहनत करते रहेंगे। ये वैसे भी कोई सिर्फ 2024 के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे हम। ये पॉलिटिक्स में, खास करके इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ग्राउंड वर्क लगातार जारी रहता है, ताकि आप उस सीट को नर्चर करें, उस सीट को सींचे। तो ये एक मेरी लड़ाई पिछले 2 साल से सिर्फ 2024 की नहीं थी, ये आने वाले लोकल बॉडी, आने वाले विधानसभा, आने वाले लोकसभा, अभी नहीं 2029 तब का लंबा सोच के हम चल रहे थे, जिसमें आप लगातार ये याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है। लेकिन जब वहीं पर सोशल मीडिया पे एक दूसरा भी कैंपेन चल रहा है कि पिछले 35 सालों से तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो उसको परंपरागत सीट आप कैसे बोल रही हैं? देखिए, लोकसभा, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि लोकसभा चुनाव जो जीता वही सिकंदर, बिल्कुल मानती हूँ। पर एक बैठक से, एक डिस्ट्रिक्ट से आपके पास संसद में एक सांसद रहा है, एक सांसद 3 बार लोकसभा से, 6 बार राज्यसभा से, जिन्होंने भरूच की आवाज़, गुजरात की आवाज़ पार्लियामेंट में लगातार उठाई है। तो कांग्रेस पार्टी ने तो काम किया ही है ना इस सीट पे। अहमद पटेल कौन थे? अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। अहमद पटेल क्योंकि वहाँ से सांसद थे, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कांग्रेस वहाँ पे उनके और उनके कार्यकर्ताओं की वजह से जिंदा रही है। लोकसभा ना भी जीते, विधानसभा जीते हैं, लोकल बॉडीज़ जीतते आए हैं, काडर है, वोटर है। तो जैसे मैंने कहा, 2 पार्टी का डिस्ट्रिक्ट है, 2 पार्टी का स्टेट भी है। गुजरात स्टेट वैसे भी भाजपा और कांग्रेस का स्टेट है। वहाँ के लोगों को सिर्फ पंजा और कमल समझ आता है। अगर एक सडनली आप तीसरी पार्टी को घुसा दे तो एक तरीके से तो बेघर ही हो गए ना। तीसरी पार्टी चल भी पाएगी या नहीं? अब हम अलायंस धर्मा फॉलो कर रहे हैं, अलायंस में है, तो जो भी साथ मिल के कर सके इस शासन को गिराने के लिए तो वो तो करेंगे, इसीलिए ये अलायंस साथ आई है। पर आगे क्या होता है अब तो देखा जाएगा। अच्छा, लेकिन इस सीट को लेकर के स्पेशली आपका एक इमोशनल अटैचमेंट था और लगातार आप फाइट कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि अब अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं है? कभी वो कांग्रेस पूरी चलाते थे, सीटें बांटते थे, पूरा एक तरह से उनका दबदबा था, तो ऐसे क्षण में आप अहमद पटेल को कैसे याद कर रही हैं? आपको लग रहा है कि उनकी कमी होने की वजह से ही आज आप लोगों को भी इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि एक सीट अपनी परंपरागत नहीं बचा पाए? देखिए, मेरा इमोशन आप साइड में करिए, आपसे मैं सवाल पूछती हूँ। आप लोग तो ज़्यादा कवर करते हैं पॉलिटिक्स को और सालों से देखते आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो ज़िंदा होते तो अलायंस में ये सीट किसी और पार्टी को जाती? आप बताइए मुझे। नहीं, हम लोग तो देखे हैं, उनसे मिले भी। बिल्कुल, तो ये अगर वो होते और इस अलायंस कमेटी का पार्ट होते तो नॉट ओनली बिकॉज ये उनकी सीट होती, पर वो जानते हैं कि इस बैठक पे कांग्रेस का जो प्रभाव है वो ज़्यादा है, तो वो कभी अलायंस में किसी और पार्टी को नहीं देते, ये कांग्रेस के हक में ही रखते इस सीट को। अच्छा, आपका क्या आकलन है? आम आदमी पार्टी इसको जीतेगी, जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? कोशिश तो वो पूरी करेंगे, पर आज के दौर में तो सब कुछ ही मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, आपके सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर्ड है, मीडिया नैरेटिव एक तरफ चल रही है, आप लोगों को किस तरीके से प्रोपेगेंडा से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ऐसे माहौल में किसी का भी जीतना बहुत मुश्किल है। कुछ चीज़ें थोड़ा कल्पना में भी बात करते हैं कि अगर ये सीट मिलती तो कौन लड़ता? आप लड़ते या आपके भाई लड़ते? क्योंकि पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि आप लगातार कैंपेन चल रही हैं, आपकी उस क्षेत्र में एक पहचान बनी है।
अगर आप मेरा ट्वीट्स फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, अगर आपने मेरे इंटरव्यूज़ देखे तो शुरू से 3 साल पहले जब उनका निधन हुआ तो पूछा गया आप राजनीति में आएंगी और आप चुनाव लड़ेंगी, तभी भी मैंने कहा पार्टी चाहेगी, जनता चाहेगी, बेशक लड़ूंगी, कभी मैंने ना नहीं बोला। और अभी भी मैं यही कह रही थी आखिरी मोमेंट तक कि पार्टी डिसाइड करेगी वो। और फिर से ये भी कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि हम उनके परिवार से हैं तो हमें ही टिकट मिलती। मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्य हूँ, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। देखिए, हज़ारों लाखों लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान चुनाव लड़े, लेकिन काम करना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो जो मैं ज़मीन पे काम भी कर रही हूँ, ये एक मैं कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह कर रही हूँ। मेरे पिता भी चुनाव नहीं लड़ रहे थे पिछले कितने वर्षों से, पर काम करना तो उन्होंने नहीं छोड़ा। भरूच की जनता के लिए भी काम करना नहीं छोड़ा। तो जब हम ये कांग्रेस की बात, अहमद पटेल की बात, मेरी बात भी कर रहे हैं, तो हर कुछ हम सिर्फ चुनाव के हिसाब से क्यों नापते तोलते। अहमद पटेल भी 1991 के बाद नहीं लड़े, राइट, लेकिन उन्होंने भरूच डिस्ट्रिक्ट के लिए, भरूच के लोगों के लिए काम करना तो आखिरी दम तक नहीं छोड़ा ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आप लड़ती, स्वयं आप लड़ती या आपके भाई लड़ते? पार्टी डिसाइड करती ना वो तो। नहीं, क्योंकि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उससे मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि आपके भाई एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें ये कह रहे थे कि दीदी काम कर रही थी, हो सकता है आपका नाम लिए हो, और मैं चुनाव लड़ता। तो ये बात उन्होंने बोली। देखिए, ना ही मैं, ना ही फैसल और ना ही कोई और ये डिसाइड करता है। हम लोगों के इतने कहने के बावजूद कि कांग्रेस अलायंस में ये, ना ही मैं, पूरे काडर, बट जो ऊपर डिसीजन लिया जाता है वो सोच समझ के एक प्रोसेस के थ्रू लिया जाता है। यानी आप और आपके भाई दोनों उस सीट के दावेदार हैं? दावेदारी कोई नहीं कर रहा था, हम दोनों, अभी चुनाव नहीं है तो भी भरूच डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करते रहेंगे। आपके लिए पॉलिटिक्स बहुत क्रूर होती है, क्या बेहतर रहेगा कि आम आदमी पार्टी वहाँ से जीत जाए या आम आदमी पार्टी वहाँ से हार जाए? ये कैसा सवाल हुआ? आई हैव टू मेंटेन द अलायंस धर्मा। ये कैसा सवाल हुआ? सच में विचित्र सवाल है, लेकिन फिर भी ये है कि भाई आप देख रही होंगी ना वहाँ पे। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीते ये चुनाव। कैसे जीतेगी? कांग्रेस पार्टी ऑल अक्रॉस सीट्स लाके जीतेगी। आप अपने कार्यकर्ताओं को जाके बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए? और कोई चॉइस क्या है? अब वो तो कार्यकर्ताओं की मर्जी, अब किसको करेंगे। लेकिन कार्यकर्ता तो नाराज दिख रहे हैं काफी। बिल्कुल नाराज है, तो उसमें वक्त लगेगा, पर मैंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी एक हद तक निभा सकती हूँ। बट अब चुनाव लड़ रहे हैं चेतर भाई, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है ना कि वो कैसे मनाए। वो नाराज है क्यों? क्योंकि पाठक जी बोल के गए कौन अहमद पटेल, ना इमोशन अहमद पटेल के साथ है, ना कांग्रेस की सीट है। मुमताज़ पटेल कौन? चेतर भाई की वाइफ ने बोला अहमद पटेल कौन? अब बोल रहे हैं कि हम अहमद भाई को श्रद्धांजलि देंगे। तो आप समझ जाइए कि कैसे परंपरागत ये अहमद पटेल की सीट है कि आपको ज़रूरत आज भी पड़ रही है कि आप आगे बढ़े उनके नाम से। पार्टी लाइन, पार्टी ने जो निर्णय लिया है मैं उसको स्वीकार करती हूँ। नाराज़, अपसेट, परेशान, तकलीफ़ सब कुछ जाहिर है, इसमें मैंने कोई दो राय नहीं रखी है। आपने सोशल मीडिया में देख लिया, मीडिया में देख लिया, लेकिन इसका कोई बगावत का मतलब नहीं है, इसका कोई बैक एंड कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इसमें कोई बैकडोर दाव पेच नहीं है। आई एम अ लॉयल मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड जैसा मुझे पार्टी कहेगी वैसा करूंगी। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।